गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन डेटा टाइप एंड डिफरेंस, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रक्चर डेटा टाइप। ओके, सो यूनियन क्या है? बेसिकली यूनियन इज आल्सो अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप that is a collection of heterogeneous kind of data. Okay, so this is like structured data type, but obviously there are some differences also that we'll discuss later. Okay, तो फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझिए कि लाइक स्ट्रक्चर यूनियन में ऑल्सो हैव heterogeneous kind of data. Okay, then if I talk about memory allocation, so memory allocation is like array, that is sequential memory allocation would be there, right? कीवर्ड क्या होता है यूनियन के लिए? कीवर्ड इज यूनियन। ऑब्वियसली इस पॉइंट पे आपको ये लग रहा होगा कि if everything is same, then what exactly how it is different from structure, right? So we'll come to that. तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी नीड टू डू, वी हैव टू डिफाइन द यूनियन, राइट? एंड डेफिनेशन वही है जैसे हम स्ट्रक्चर के लिए करते थे। द ओनली डिफरेंस इज कि जहाँ पे स्ट्रक्ट कीवर्ड होता था उसकी जगह क्या आ गया? यूनियन आ गया है। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ग्लोबल सेक्शन में करेंगे सो दैट वी कैन यूज इट इन ऑल द फंक्शंस, राइट? सो यूनियन ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी मैंने तीन मेंबर्स लिए हैं, सो ए बी सी आर द मेंबर्स। ए बी सी here, ABC is what? That is the name of the union data type. Obviously, it has to be given by the user only, right? Then how we create variables. So again, first we'll write the data type, that is union ABC, and then name of the variable is A1 and A2. तो यहाँ पे दो वेरिएबल क्रिएट हो गए। लाइक स्ट्रक्चर, इफ वी हैव, लेट्स से वी हैव 100 variables, तो instead of declaring 100 variable, what we can do, we can create a array of those union type. Okay, उसके लिए क्या करेंगे? We'll write, first of all we'll write union ABC and then name of the array A, and here is the size as usual. So up to this point I think this is exactly like structure. Okay, so we have not discussed any difference yet, right? Now we'll come to difference. So both structure and union, these are user defined data types. ये क्या है? दोनों user defined data type है, but जो there is a huge difference between them, and that is of memory allocation, right? How the memory would be allocated to different members, that is the question, right? Structure के केस में क्या होता है कि like you are having 3 members, so every member will have their separate memory, right? Like if I go to this example, तो यहाँ पे मेरे पास एक इंटीजर है, एक फ्लोट है, एक डबल है. So whenever I declare some variable of this type, so how many memory would be allocated? 2 bytes to this one, 4 bytes to this one, and 8 bytes to this C. A के लिए 2, B के लिए 4 और C के लिए 8. So total how many bytes are allocated for a single variable of structure type? 14 bytes. बट दिस इज नॉट द केस विद यूनियन। यूनियन के केस में ऐसा नहीं होता। यूनियन में क्या होता है? इन केस ऑफ यूनियन मेमोरी इज बीइंग शेयर्ड अमंग ऑल द मेंबर्स, राइट? तो जितने भी मेंबर होंगे, लाइक यहाँ पे 3 मेंबर हैं, ये तीनों मेंबर जो है ये मेमोरी को शेयर करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे कितनी मेमोरी एलोकेट होगी? स्ट्रक्चर के केस में 14 बाइट्स है, तो यहाँ पे कितनी होगी? सो मेमोरी इज एलोकेटेड टू द लार्जेस्ट मेंबर। अब इसमें लार्जेस्ट मेंबर क्या है जिसकी सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट है? सो सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट है सी की। कितनी? 8 बाइट। सो इफ यू आर डिक्लेयरिंग एनी वेरिएबल ऑफ यूनियन, so 8 bytes would be allocated, and these 8 bytes will be shared between A, B and C. A, B, C तीनों इन्हीं 8 bytes को शेयर करेंगे। स्ट्रक्चर के केस में it was 14 bytes. That is the fundamental difference. Okay. So in case of structure, if you go by the third point, in structure, total memory allocated is the sum of memory of all the members. जैसे अभी हमने देखा 14 bytes, right? सम कर दिया हमने तीनों का,
उतनी मेमोरी एलोकेट होगी फॉर अ सिंगल वेरिएबल. इन केस ऑफ यूनियन द मेमोरी इज इक्वल टू द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर. जैसे अभी हमने देखा लार्जेस्ट मेंबर क्या था, सी. उसका साइज कितना था, 8 बाइट. सो 8 बाइट वॉज एलोकेटेड. ठीक है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग ऑफ मेमोरी, राइट, बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग ऑफ मेमोरी, यूनियन में क्या होता है कि हम सारे मेंबर्स को एक साथ यूज नहीं कर सकते, है ना. पैरेलली वी कैनॉट स्टोर द डेटा इन ऑल द मेंबर्स. व्हाई? बिकॉज मेमोरी इज कॉमन. Like if you are having three members A, B and C and they are sharing the memory, so either you can store the data in A or data related to B or data related to C. अगर आपने पहले A का डेटा स्टोर किया है and then you have stored data for B, तो क्या होगा, B जो है वो A वाले डेटा को ओवरराइड करेगा. फिर आपने C स्टोर किया तो C जो है वो B वाले डेटा को ओवरराइड करेगा. इसका मतलब सारे मेंबर आप अगर साइमल्टेनियसली एक्सेस करते हैं तो जो मेंबर आपने लास्ट में स्टोर किया है सिर्फ वही डेटा एक्सेसिबल होगा यूनियन के केस में. सो वी कैनॉट यूज ऑल द मेंबर साइमल्टेनियसली. स्ट्रक्चर के केस में क्या था कि मेमोरी इज एलोकेटेड सेपरेटली, सो वी कैन यूज ऑल द मेंबर्स एट द सेम टाइम पैरेलली साइमल्टेनियसली. ओके, दैट इज अ फंडामेंटल डिफरेंस. अब क्वेश्चन ये आता है कि यूनियन हम कहाँ पे यूज करेंगे, यूनियन की एडवांटेज क्या है. सपोज वी हैव अ सिनेरियो वेयर we have taken three members, but at one point of time or in a particular case, in a particular situation, हमें सिर्फ एक ही member use करना है, right? तो अगर आपने स्ट्रक्चर आप लेके चल रहे हो तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, द मेमोरी वुड बी वेस्टेड. आपको एक मेंबर यूज करना है, दो मेंबर्स की अगर तीन मेंबर्स टोटल हैं ए बी सी और आपको एक टाइम पे ए यूज करना है, बी और सी यूज नहीं करने, और आप स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो बी और सी के लिए जो मेमोरी है दैट वुड बी वेस्टेड. लेट्स से आपको बी यूज करना है, अभी ए और सी यूज नहीं करने हैं. सो इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो वेयर यू नीड वन मेंबर एट अ टाइम, so you can go for union, and in case of union memory requirement would be less, so you can save some memory, right? If what is the disadvantage of union? Obviously memory, memory is being saved, memory is being effectively used in case of union. But what is the disadvantage with union? If you want to access all the members at the same time, yeah, then we cannot go for union, we have to go for structure. Like there is an example. So अगर आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो और इधर आप एक यूनियन क्रिएट कर रहे हो, मेंबर्स आर सेम, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट. तो टोटल मेमोरी हो गई 14 बाइट्स. और सबकी मेमोरी अलग है, ए बी सी सबकी मेमोरी अलग है. इन दिस केस अगेन 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, 8 बाइट. बट जो मेमोरी है वो किसे एलोकेट होगी, टू द लार्जेस्ट मेंबर. लार्जेस्ट मेंबर इज सी, सो 8 बाइट्स वुड बी एलोकेटेड. ठीक है. तो आपको जो लार्जेस्ट मेंबर है, जिस लार्जेस्ट मेंबर का मतलब क्या है, जिसकी सबसे ज्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसे देखना है, and that is the memory to be allocated in case of union. Now let us verify this with a example. ठीक है. तो सेम एग्जांपल मैंने लिया है. आई हैव टेकन अ स्ट्रक्चर ए बी सी, उसमें मैंने तीन मेंबर लिए हैं, एक कैरेक्टर टाइप का है, एक इंटीजर है, एक फ्लोट है. नाउ इफ दिस इज स्ट्रक्चर, सो टोटल जो मेमोरी एलोकेटेड है A1 को, इट शुड बी द सम ऑफ ऑल दीज थ्री. तो कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट 1 बाइट, इंटीजर की रिक्वायरमेंट 2 बाइट्स, फ्लोट की रिक्वायरमेंट 4 बाइट. दैट मीन्स the total size of A1 should be 7. 4 plus 2 plus 1. Let us verify it. So size of A1 is 7. Okay. अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे यूनियन बना देता हूं. तो कुछ नहीं करना, सिंपली पुट यूनियन वेयर एवर यू हैव रिटन स्ट्रक्ट. नाउ इट इज अ यूनियन. अब इसकी जो मेमोरी एलोकेशन है दैट वुड बी डिफरेंट, एंड दैट मेमोरी वुड बी एलोकेटेड टू द लार्जेस्ट मेंबर. अब यहाँ पे लार्जेस्ट मेंबर क्या है, सी है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है 4 बाइट. तो A1 को, जो A1 ये जो वेरिएबल है यूनियन टाइप का, अब इसे टोटल मेमोरी कितनी एलोकेट होगी, इक्वल्स टू द साइज ऑफ द लार्जेस्ट मेंबर, दैट इज 4 बाइट्स वुड बी एलोकेटेड. लेट अस वेरीफाई इट.
size of A1 is 4. ठीक है. Let's say you want to store something. Let's say आपने क्या किया, suppose A1 dot A is equals to suppose capital A. आपने एक पहले कैरेक्टर स्टोर किया है, and then what you are doing, you are storing integer value. Now what was the limitation with the union? We cannot use all the members simultaneously. Now we can verify it. We can just printf. First I'll write percentile C, then I'll write percentile T. Here I can write A1 dot A and here I can write A1 dot. ठीक है, स्ट्रक्चर की तरह यहाँ भी डॉट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं. Now see what you have stored, capital A, but what you are getting actually, you are getting a random kind of character you are getting, because what happened here, पहले आपने A स्टोर किया था. Now let me reverse it. Here I am writing A1 dot C is equals to something like 20, sorry, let's say 21.21. Okay, now it is long double, it is float, so I'll write percentile F. Here I am writing. अब इसमें क्या होगा, जो लास्ट मेंबर है वो जो प्रीवियस जो लास्ट में आपने स्टोर किया है, इट विल बी स्टोर्ड ओवर द प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यूज, राइट. तो यहाँ पे लास्ट में हम स्टोर कर रहे हैं सी, तो सी जो है वो ए और बी को ओवरराइड करेगा. देखते हैं. नाउ हियर यू आर गेटिंग, सो लास्ट वैल्यू वी आर गेटिंग 21.21, राइट. बट जो इंटीजर और कैरेक्टर वैल्यू है दैट आर नाउ बीइंग ओवररिडन बाय सी. So that is why we cannot use all the members simultaneously. But if it is a structure, let's say it is a structure, so yes, in that case I can do that. Why? Because every member is having a different memory. Now here you can see you are getting capital A 20 and float value also, right? So I hope that clears the confusion. What is the difference between them, right? Okay, so this is all about union and how it is different from structure. Thank you so much.